Let's start our class. Okay, come on. Sai Ram. Okay, now you all can open your book on page number 27. You can find about the tribes. Okay, you have to describe about the cultures, about the culture or tradition of the tribes. So in this whole portion, you will get the answers. Okay, like small points are given, you can make still smaller. You can write only main points. Okay, like tribes have rich and unique cultural traditions. Ma'am, what is the page number? It is 27 and 28 page number, beta. Okay. So from this portion, you will be able to describe about tribes. Got it? Yes, ma'am. Okay. And the other one was Mehergar, no? Yes, ma'am. Describe about Mehergar. Same Yes, page. ma'am. On page number 28, you will find from 28 to 29. Okay. From 28 to 29. If you go through it, you will get the answer of Mehergar. Okay. Jot down all the important points. 5-6 sentences. Important 5-6 sentences. सिर्फ वही पढ़ कर वही 5-6 sentences को आप अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे. So that will make your answer. Okay. Now, is there any doubt? Yes, ma'am. No, ma'am. Okay. Let's do then book exercise. Come to that on page number 31. Now, very common questions are there. We have already discussed these questions. See, first question, why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? That day also somebody asked me. Okay. Ma'am, because they have to take care of the crop Ma'am, all the time. Very good. Or the One by one, one by one, one by one. ऐसा काम कर सकते हो मैम, मीम ही लिखेंगे चैट बॉक्स में, तो आप ही चूज कीजिएगा कि कौन आंसर देगा मैम, क्योंकि फिर एक साथ बोलते तो कुछ समझ में नहीं आता. अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं चैट बॉक्स इसलिए ओपन नहीं करती कि कई बार क्या है, जिसका नाम लिया जाता है वो लेफ्ट हो जाता है, उसको नहीं पता होता है. ऐसे क्या है, जैसे एक कोई बोलना शुरू करता है ना, जस्ट वेट फॉर दैट पर्सन टू कंप्लीट द आंसर. ओके, आफ्टरवर्ड्स यू कैन स्टार्ट. तो अपने आप अगर ये समझदारी से काम करेंगे तो कहीं पे भी क्लैशेस नहीं होंगे बेटा. ओके, महेश वाज गिविंग आंसर that they have to take care of the plants. Okay. Who else? जानवी, बहुत दिन से आपकी आवाज नहीं सुनी. Okay. मानव. Ma'am, can I? Just wait, Ma'am, Vedant. can I? Yes ma'am. People who grow crops had to stay in the same place for a long time for looking after the plants, watering, driving, and weeding away animals and birds till the grain ripened. Ripen. Okay, yes. Sherry. Yes, ma'am. People who grow crops have to stay in the same place for a long time because plants take time to grow, and when plants are not grow, they do not eat. They do not have food for eat. Food to eat. Okay, they would not get food to eat. Okay, yes, good. Vedansh. Yes, ma'am. Some Okay, Pravanshika. What is your answer? मैम आपकी वॉइस धीरे धीरे आ रही है अभी. Pravanshika.
वेदांश जस्ट वेट, ओके। प्रवंशिका अगर बोल रही है तो उसके बाद आप वापस आ जाना, ओके। Once ripened, they had to think of way to store it. Hence, they had to stay in the same place for a long time. These are the points. All together will make your answer, okay? एक पॉइंट से आंसर कंप्लीट नहीं होगा बेटा, जस्ट रिमेम्बर दिस, ओके। तो हमको Okay, हमेशा ma'am. पेंसिल वगैरह लेके सारे के सारे पॉइंट्स को ऐड करते जाना चाहिए। वेदांश, यस, मैम कंटिन्यू, यस मैम, यस। मैम वो उस टाइम माइक खराब हो गया था। हाँ, मैम नो दे प्रॉब्लम हैव बेटा। वेदांश, मैम फिर उसकी आवाज चली गई। हाँ, कहीं प्रॉब्लम आ जाता है कई बार। मैम मैं बताऊं, जानवी। जानवी, यस बेटा। मैम दे हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स। यस, वेरी गुड, ओके। महेश, Ma'am, that was the same, but I just like my answer was that they have to stay there because if they won't stay there, animals can break their crop. यस, Ma'am, can I? यस चेरी। Ma'am, people who grow crops have to stay in the same place for a long time to look after plants, protecting them from birds, animals, and their other fellows, so that they could grow and crop or seeds safely. Okay, good. So you got the answer. Now, if suppose such type of questions come, write in your own words. किसी भी जगह के लिए प्लांट्स को अगर किसी ने उगाया है, बीज बो दिए हैं, तो बीज 1 या 2 दिन में उगकर फल नहीं देते, ठीक है? So the people had to wait there till the plants. मैम it takes time so much. Yes, Divya. Divya, what you were saying? मैम यू से कि अब जैसे अपन ने बीज बोया तो वो 1 या 2 दिन में नहीं उगता, तो मैम ये बोल रहा था कि इट टेक्स टाइम सो मच। इट टेक्स टाइम, यस, है ना? किसी क्रॉप को ग्रो करने में 2-3 मंथ्स का टाइम लगता है, किसी को ग्रो करने में 6 मंथ्स का टाइम लगता है, किसी को, जैसे अगर हम ट्रीज वगैरह ग्रो कर रहे हैं तो वो फ्रूट्स कब आएंगे, उसमें मे बी 1 ईयर के बाद, 2 ईयर के बाद, 5 ईयर्स के बाद. So such type of activities they were doing, and they observed such things. That is why they need to stay at same place. Okay, if you have some other point, you can add your point. ये मत सोचना कि बुक में इतना ही दिया है तो इससे ज्यादा नहीं लिख सकते. If you have some other points, you have read somewhere, you have heard somewhere, you can add those points. Okay? तो बुक में आपके क्लियरली ये पूरा एक पैराग्राफ में दिया हुआ है कई सारी चीजें, तो you can write these points as well as you can write your own points also adding to this answer. Okay, in addition to this answer. Okay, is this clear? Shall we proceed further? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now second one is, look at the table on page 25. Nino wanted to eat rice. Which are the places she should have visited? अब जो ये लड़की है, अगर इसको हाँ राइस खाने की इच्छा है तो उस समय में कहाँ कहाँ राइस ग्रो होता था, उसको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? Ma'am, can I? Ma'am, मैम कैन आई? मैम Can I? माइक ही हो गया। मैम मेरा किस माइक किस ने ही हो गया। ओके मैम वेदांत, ओके वेदांश बोलो. मैम शी शुड मैम उसे कोस्टल एरिया के पास जाना चाहिए था। On Ma'am, page can I? 25, what is given on Ma'am, page 25, it is based on your book information. Coastal areas में तो राइस ग्रो होता मैं है. बताऊं? Yes, चेरी ma'am, बोलो. Mahesh. Yes, ma'am. Ma'am, Neona have visited Kolidwa in present day of Uttar Pradesh and Mahagarh in present day in Uttar Pradesh. Okay.
मिला क्या किसी को? देखो पेज नंबर 25 जल्दी से ओपन करो, यू कैन गेट द यस मैम, टेबल वहाँ देयर। पे एक टेबल बना हुआ Yes, है, वहाँ पे ma'am. सब कुछ हाँ, लिखा है। पहले टेबल में फाइंड आउट करो राइस कहाँ दिया हुआ है ना? देखो मैम सेकंड में सेकेंड दिया एंड हुआ है, थर्ड नंबर पे। सेकंड एंड मैम थर्ड पे दिया हरियाणा, हुआ है। मैम हरियाणा में हाँ, भी मैम है। कोलदेवा। राइस कोलदीवा, present day Uttar Pradesh, it is there. Okay, and the second मैम one is हरियाणा, मैम Mahagar. हरियाणा ऑल्सो। It is not Mehargar, it is Mahagar. Both are different. Mehargar is different than Mahagar. Okay, so don't get confused, beta. मैम यहाँ Yes. टेबल में देख के लगता है कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा राइस ग्रो होते होंगे। हाँ बेटा, क्योंकि ये ना मैदानी भाग है, क्योंकि ये प्लेन एरिया है, इट इज मीन्स यू कैन से टोटल नेटवर्क ऑफ रिवर्स, सो मेनी रिवर्स आर देयर। सो जो डेल्टा फॉर्म होता है ब्रह्मपुत्र और गंगा का, वो भी वहां पे है। प्लस जो गंगा यमुना ये सारी नदियां हैं, जब जाती हैं तो जो न्यू सॉइल लेकर आती हैं, दैट मेक्स द लैंड फर्टाइल। और ये न्यू सॉइल हर साल आती है, जैसे बाढ़ आती है ना, तो महीन मिट्टी जो होती है, बहुत फाइन पार्टिकल्स वाली मिट्टी, वो वहां पे फैल जाती है जितनी दूर तक पानी फैलता है। और जब पानी कम हो जाता है तो वो साइड के एरियाज को फर्टाइल बना देता है, मैम क्योंकि उसमें लोमी बहुत सॉइल सारे होती है। मिनरल्स होते हैं। हम मैम लोमी वेस्ट सॉइल बंगाल में सबसे सबसे मैम ज्यादा अच्छी होता होती हाँ, है है मैम यस, उगाने में। एब्जॉर्ब कर, यस। यस मैम। मैम, लेकिन ये वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा होता है एल्यूवियल चावल। सॉइल बोलते हैं बेटा, एल्यूवियल सॉइल। ओके, एल्यूवियल सॉइल। यस मैम। तो इस ये बहुत ही चिकनी होती है, आप हाथ में लोगे ना तो आपको बिल्कुल भी दरदरी नहीं लगेगी, लगेगा जैसे मैदा है हाथ में, इतनी महीन होती है, इतनी मतलब सॉफ्ट, सिल्की वाला टच होता है आपकी चॉकलेट की, सिल्क टच वाले, सिल्क वाली जो चॉकलेट होती है ना, ऐसा सा यस टच होता मैम। है जैसे फिसलने वाला। ठीक है, तो दिस सॉइल इज गुड फॉर मीन्स ग्रोइंग क्रॉप्स। So land is very fertile. That is why in northern area or in the northern plains you will find that many of the crops can be grown over there. तो वहां पे इसीलिए लोग सबसे ज्यादा रहते हैं, क्योंकि मैदान है, प्लेन्स है, और सारी सुविधाएं बड़े इजीली लोगों को मिल जाती है। दे डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग, दे गेट ईच एंड एवरीथिंग देयर इटसेल्फ। उनको कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो इज दिस क्लियर? द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन योर बुक Yes, इंफॉर्मेशन। ma'am. Otherwise, यस they need मैम। to go to coastal area. If we want to eat rice, we need to go to coastal area, and not in present time we can get rice anywhere, everywhere. मैम यस मैम, वेस्ट बंगाल, हाँ, आसाम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। yes, good. Ma'am, So this is Kerala. coastal regions, yes, everywhere you will get rice in plenty. Okay, and why rice is grown in plenty there? Why it is Because grown ma'am, there? water is available. Water is. Yes, the paddy crop needs too much water. उसको पानी बहुत चाहिए, अगर पानी नहीं दोगे तो वो फसल होगी नहीं। तो ये जनरली मैम जहाँ एंड द पे, सॉइल इज वेरी सिल्की। हाँ, तो मैम ये जहाँ पे मैम पानी इसीलिए अवेलेबल मैम हो। मैम राइस लेकिन को मैम। दिव्य दिव्य बोलो। मैम लेकिन जैसे खेतों में जैसे पानी भर जाता है तो फसल बेकार हो जाती है, अगर उनमें पानी भर जाता है तो फसल बेकार हो बेकार जाती है। नहीं होती। इसको इनिशियली स्टार्टिंग में बहुत पानी चाहिए होता है, घुटने घुटने के भर पानी चाहिए होता है। और ये पौधे हमेशा नर्सरी में उगाए जाते हैं। ठीक है, इनके लिए अलग से प्लांटेशन किया जाता है। मैम मैम मैं जब नर्सरी अपने कहाँ पर है? गाँव में हाँ, नर्सरी बेटा, कहाँ पर है? नर्सरी नहीं, एक प्लॉट छोड़ लेते हैं, एक छोटा सा खेत बना लेते हैं। ठीक है, बहुत छोटा सा, उसमें वो पहले पूरे प्लांट्स को ग्रो करते हैं, पहले पूरे सीड्स डाल के ग्रो करते हैं। फिर वहां से जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, से 25 सेंटीमीटर बड़े हो जाते हैं या 30 सेंटीमीटर, जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, तब वो वहां से पौधे लेके जाते हैं। और जो मेन खेत होता है उनका, जो बड़ा वाला खेत होता है, उसमें दूर दूर लगाते हैं, एक एक पौधे को दूर दूर लगाते हैं। वो उसको सीड्स को स्प्रेड नहीं करते, स्प्रिंकल नहीं करते। ठीक है, वो उसको प्लांट करते, दैट इज कॉल्ड प्लांटेशन। मैम ठीक है। मैम ऐसे ही ना मैम, मैं जब अपने गांव में गया था तो मैम मैंने देखा था ना कि मैम मैम मैं तो उसमें देखा था कि वो जो वो किसान लोग थे मैम, वो अपने उनके ना मैम मैम थाई थाई लेवल जितने मैम पानी में था। और मैम वो लोग ना ऊपर से मैम ऊपर से एक दो लोग
ऊपर से वैसे ही पानी छिड़कते रहते और वो लोग मैम अंदर डाल रहे थे कुछ खोद के। पौधे ग्रो कर रहे थे, एक एक को मिट्टी में लेते, एक पकड़ के, मतलब इट इज वेरी टीडियस जॉब, बहुत थका मैम देने वाला काम होता है, क्योंकि मैम वो एक एक पौधे छोटे से प्लांट को मैम डाल रहे थे। हाँ झुक झुक के लगाना पड़ता है, एक प्रॉपर प्लेस पे, प्रॉपर डिस्टेंस पे। मैम मैम हमने 4th क्लास में पढ़ा था कि वो बैल गाड़ी लेके उसमें बड़ा सा होल करके नीचे छोटा सा होल रहता है, उसमें अपन सीड डालते रहते हैं तो जाते रहते हैं। वो सीड डालने का होता है, यहाँ हम प्लांट डालते हैं। सीड हम एक जगह एक छोटे सी प्लॉटिंग कर लेते हैं, छोटा सा खेत बना लेते हैं, जिसको मैं नर्सरी जैसा बोल रही हूँ, वहां पे पूरे सीड्स को जैसा आप बोल रहे हो इस तरीके से ग्रो कर लिया था। जैसे हम कोई भी प्लांट ग्रो करने के लिए, लाइक आपको सरसों ग्रो करना है, मस्टर्ड सीड्स डाल देते हो आप ऐसे ही करके, है ना। तो चावल को उगाने के लिए जो धान होता है उसको पहले ऐसे ही खेत में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके लिए एरिया बहुत फिक्स रहता है। उसके बाद जब वो प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वहां से उखाड़ लिए जाते हैं पूरे प्लांट्स, और फिर उसको खेत में लगाया जाता है। अगर पहले ही ऐसे डालेंगे तो प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे। ये ह्यूमन बींग्स ने लेटर स्टेजेस में सीखा कि किन प्लांट्स को अगर हम प्लांट करके प्रॉपर दूरी दे देंगे, प्रॉपर डिस्टेंस में रखेंगे, तो प्लांट्स अच्छी फसल देंगे, है ना। मैम वो आप एक ये साइड मैम बहुत गाढ़ा पानी होता है मैम, उसमें वो लोग पहले एक एक साइड में डालते हैं, हम उसके बाद फिर वो फील्ड में ले जाते हैं। आप ये देखो, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की थ्योरी पता है आपको? नो। अच्छा, अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखना घर में, छोटा सा कोई भी, जैसे पेपर ग्लास ले सकते हो आप, अगर पास थोड़ा छोटा डब्बा है वो भी ले सकते हो, टिफिन है वो भी ले सकते हो, मिट्टी डालो उसमें जरा, और मिट्टी डाल के क्या करना, जैसे आप प्लांटेशन करते हो ना कोई सीड ग्रो करने के लिए, यू कैन पुट द सीड्स ऑन दैट पर्टिकुलर जो भी लिया आपने, कंटेनर लिया है ना, उसमें डालकर देखना एक बार। ऐसे ही डाल दो। मेथी डालना है तो मेथी डाल सकते हो, मम्मा यूज भी कर लेगी बाद में। सरसों भी डाल सकते हो, उसकी पत्तियां भी यूज हो जाएंगी। धनिया टेक्स टू मच टाइम, कोरिएंडर को उगने में टाइम लगता है, इसलिए उसके लिए मैं आपको नहीं बोल रही, पर गेहूं और चना मैम और ये जो है मैम मस्टर्ड मिंट सीड, आल्सो, मैम कोरिएंडर मिंट आल्सो। कोरिएंडर बेटा आपका टाइम लेगा, कोरिएंडर के लिए मैम उसे मैम 5 to 6 months लगते हैं उगने में। उगाना नहीं, हमको तो सिर्फ उगाना है, उसको ग्रो करना है, हमको उसमें से फल नहीं लेने हैं, ठीक है, उसके बीज नहीं कलेक्ट करने। यस बेटा, यस मानव, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि 2-3 दिन तक आप बहुत पानी नहीं देना, ठीक है। इफ द सॉइल इज वेट देन डोंट पुट वाटर इन दैट, टू मच एक्सेस ऑफ वाटर उसकी रूट्स को पूरा गला देगा, प्लांट्स गल जाएंगे, वो सर्वाइव नहीं करेंगे। तो जब मिट्टी हल्की सी सूखने लगे तो थोड़ा थोड़ा सा पानी देना, ऐसा नहीं देना कि बहुत ज्यादा पानी उठा के डाल दिया उसमें, छोटे से उसमें, है ना, वो डूब जाएगा पौधा। तो आप देखोगे कि एक साथ पौधे ग्रो करेंगे, ट्राई करना, बड़ा मजा आता है देखने में। और जब एक साथ पौधे ग्रो करेंगे तो आप देखोगे कोई बहुत पतला है, कोई बहुत मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, ठीक मैम है। कोई आप फेवरेट बन जाता है। मैम मैं बताऊँ ऐसा क्यों होगा? हाँ बताओ। मैम क्योंकि मैम वो मैम कंपटीशन होगा उनके बीच में मैम, यस एग्जैक्टली, मैम किसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। वो कंपटीशन ही होता है। एंड दिस थ्योरी इज नोन एज इन साइंस सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा, जो हेल्दी होगा वही सरवाइव करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा, धीरे धीरे सारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन छीन लेगा। तो जो बीच में आए होंगे ना, अनहेल्दी होंगे जो, वो मर जाएंगे पौधे, वो गायब हो जाएंगे धीरे धीरे, वो और ज्यादा अंडर नरिश्ड हो जाएंगे, है ना। ऐसे लगेगा कितने दिनों से खाना पीना नहीं मिला, जैसे आपने कईयों को देखा होगा ना, गरीबों को देखोगे तो यू विल फाइंड दिस सिचुएशन कि वो बिल्कुल स्केलेटन मैम है। एक क्वेश्चन था। दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट। तो आप ट्राई करना और ऑब्जर्व करना, यू लव टू डू दिस एक्सपेरिमेंट, ओके, डू इट एट होम। किसी भी छोटे सी चीज में जरा सी मिट्टी, सरसों बहुत जल्दी उग जाती है और गेहूं बड़ी जल्दी उग जाता है, इवन मेथी भी बहुत जल्दी उग जाती है। तो ये 3 में से कोई भी बीज लेकर आप उगा के देखिए,
कि क्या वाकई होता है। मम्मी से थोड़े से बीज ले लेना, चना ले सकते हो आप, चने भी जल्दी उग जाते हैं, पर उसको थोड़ा सा बड़ा होने तक ऑब्जर्व करना है, मैम डेली यू हैव टू। कोरिएंडर के कोरिएंडर नहीं लेना है, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट टेक कोरिएंडर सीड्स, धनिया बिल्कुल नहीं लेना है। मैम विच मस्टर्ड सीड्स, गेहूं रखते हैं अगर आपकी मम्मा खरीद के साल भर के लिए, तो यू कैन टेक व्हीट, सीड्स ऑफ व्हीट, और यू कैन टेक चना ग्राम, ओके। ब्लैक ग्राम जो होते हैं, हॉर्स ग्राम जो होते हैं, काले चने, देसी चने, उनको ले सकते हो। ये 3-4 सीड्स टाइम नहीं लेते और आपको बहुत समय तक वेट नहीं करना पड़ेगा। यू कैन ऑब्जर्व देम केयरफुली एंड विथ फुल इंटरेस्ट, आई नो दैट। तो ऑब्जर्व करके बताना, 1 हफ्ते के बाद देखेंगे। अगर आज ही कर लोगे, कल संडे है ना, तो कर सकते हो आज कल में, उसको ट्राई करना 1 वीक, तो नेक्स्ट सैटरडे बात। मैम कहाँ पे करेंगे मैम? सामने घर बन रहे हैं। ऐसे करेंगे क्यों? यस मैम, कहीं पर जगह नहीं बची है करने के लिए, पहले उधर काम। आपको खेत में थोड़ी ना उगाना है। यस मैम, मैम वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मैम सामने यहाँ पे गड्ढे बन रहे थे वहाँ पे, जिसमें खोद सकते थे, अब तो उधर सीमेंट वगैरह पूरा बन रहा है। आपके पास मिट्टी पॉट वगैरह नहीं है कहीं पे? थोड़ी सी भी मिट्टी नहीं मिलेगी? हाँ, यस तो उस मैम पॉट में से थोड़ी सी मिट्टी ले लो, किसी डिस्पोजेबल ग्लास में डाल लो, डिस्पोजेबल कप में डाल लो, या कोई पुराना आपका कप है या कुछ ऐसा है, उसमें डाल के देख लो, है ना। साईराम प्रांजल, व्हाई आर यू सो लेट? मैम मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, ये संदीप बिल भी आया आज, ज्वाइन तो हुआ था, आई डोंट नो वेदर ही इज देयर और नॉट। चलिए, संदीप है। अच्छा चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन, because today we have to complete this chapter and we'll be taking new chapter in the new week, okay. Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh were hunters to start with? क्वेश्चन को समझना है। Why do archaeologists think that many people who lived in Mehergarh, it is not Mahagarh, it is Mehergarh, presently in Mehergarh is presently in पाकिस्तान। Pakistan, yes, पाकिस्तान। okay. Yes. Now the archaeologists think that people who lived in Mehergarh were hunters to start. शुरू में वो क्या थे? हंटिंग करते थे, हंटर्स थे, and that herding more important later. अब वो बोलते हैं शुरू में तो वो हंटिंग करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, हंटिंग उनकी लगभग छूट सी गई और वो क्या बन गए? हर्डर्स, पशु पालन करने वाले, हर्डिंग करने। मैम वो हर्डिंग करने लग गए। आज मैं तन्मय से पूछती हूँ, तन्मय आवाज नहीं आई आज। क्वेश्चन ये समझ उसके गया बाद प्रबंध क्या है। मैम कहना है। हाँ चेरी, कुछ कह रहे हो? मैम कहना है। मैम क्वेश्चन समझ नहीं आया। इसमें पूछा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा क्यों सोचते हैं कि जो मेहरगढ़ में लोग रहते थे वो पहले हंटर थे, बाद में वो पशुपालक बन गए, हर्डर्स बन गए, पशुओं को पालने वाले बन गए, और हंटिंग जो थी वो सेकेंडरी जॉब हो गया उनका। वो हंटिंग जब जरूरी, मतलब ऐसा नहीं था कि हंटिंग के बिना काम ही नहीं चलेगा। हंटिंग ऐसी शौक के लिए या बहुत कम किया करते थे, ज्यादा वो पशुपालन किया करते थे। ओके, हर्डर्स मींस डोमेस्टिक। मैम कहना है। जस्ट वेट तन्मय, वुड यू लाइक टू आंसर? यस मैम। यस बेटा, कम ऑन। मैम वो पहले हंट इसलिए करते थे क्योंकि पहले तो ज्यादा टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ नहीं थी, तो उनको पता भी नहीं था, तो वो हंट करके क्या करते थे। फिर बाद में धीरे धीरे वेजिटेबल्स ग्रो हुई और धीरे धीरे वो अभी पेट एनिमल्स रखने लग गए और वो बाजार से खरीद लेते होंगे। बढ़िया वाला आंसर आया है। मैम मैम Yes, मैम ma'am. क्या नहीं आंसर? Archaeologists found the bones of many animals such as deer in the earlier levels. Hence, they could conclude that they were to start with. Herding became important because they found bones of sheep and goat in the later levels. Very good. Now I told you that by getting the bones
मैम कहने Okay, archaeologists have found bones of animals. Yes, Divya, would you like to answer? Divya? यस मैम। Yes. मैम अभी अभी तो होता है कि जैसे कुछ लोग मीट खाना पसंद करते हैं, तो वो मतलब आगे के लिए बचा के रखते हैं, जैसे समय आएगा कि जब वो मार देंगे। ऐसा हो सकता है। Okay. हाँ, कौन बोल रहा था? वेदांश? मैम बिकॉज मैम remains of bones and bones were found in Mehergarh in earlier stages, and and after a long time there were found bones of sheep and goats, so that they think people were herding and hunting the animal. Herding, हाँ, they were herders. Okay. Ma'am, can I? Yes, Mahesh, Cherry, wait. Just wait, beta. Mahesh, come on. यस मैम। मैम लोग जब भी किसी एनिमल को जैसे मारते थे तो फिर कभी कभी उनके टूल्स के जो पार्ट्स या फिर पार्ट जैसे उन्होंने स्टोन का बनाया, तो फिर वो मारते थे तो फिर उनके स्टोन्स के छोटे छोटे कभी कभी टुकड़े हो जाते थे उनके स्टोन टूल्स की, तो फिर वो स्टोन टूल्स के टूटे हुए भाग उधर मिल जाते होंगे आर्कियोलॉजिस्ट्स को, जिनकी वजह से उनको पता चलता होगा कि उधर ही ज्यादातर हंटिंग स्टार्ट हुई थी। History, that means evidence. History is totally based on evidence. Yes. हमें जो एविडेंस मिला वही हिस्ट्री है। अगर हमें एविडेंस नहीं मिला है तो हमने हिस्ट्री लिखी नहीं है। जब से हमें एविडेंस मिलना शुरू हुआ हमारी हिस्ट्री तब से ही बननी शुरू हुई। ओके, हिस्ट्री हमारी तभी से बनी है जब से हमको एविडेंस मिले। जिसके प्रूफ नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, तो हम उसके बारे में ज्यादा पढ़ते भी नहीं है, समझ में भी नहीं आता। वी जस्ट इमेजिन थिंग्स, ऐसा हुआ होगा। ओके, उसका कोई हमें एविडेंस नहीं मिला तो हम सिर्फ अंदाजा लगाते हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ कह नहीं पाते कि ऐसा ही हुआ होगा, है ना? Ma'am, can I? हाँ चेरी। Yes, ma'am. Archaeologists have found bones of wild animals in the lower levels. On upper levels, they found bones of animals, cattle bones. This means that hunting wild animals was important much before herding was. Very good. You have read it from somewhere, no? Come to Mehergarh again on page number 28. If you have book, just मैम turn your आंसर हिंदी में बताओ। मैम आंसर समझ में मैं आंसर इंग्लिश में बताऊं? कौन बता रहा है? Who is going to tell? Manav, okay, Manav. Yes, ma'am. Okay. Archaeologists have found the bones of wild animals from lower level of Mehergarh and bones of domestic animals from the upper level. This proves that people in Mehergarh earlier were hunters. Later on, they turned into herders. मैम इसका आंसर पेज नंबर 28 की एक बॉक्स में earlier and later. We have discussed this also during our class. जब हंटिंग थी, हंटिंग जो भी लेवल नीचे होता है वो सबसे पहले का होता है। खुदाई में जितनी चीजें ऊपर के लेवल में मिलती है वो सबसे रिसेंट होती हैं, है ना? तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिला? दे हैव फाउंड एविडेंसेस ऑफ बोन्स। व्हिच बोन्स? जैसे उन्होंने खोदना शुरू किया तो दे हैव फाउंड सम बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। वो डोमेस्टिकेटेड या रियर्ड एनिमल्स कौन से? शीप, गोट, कैटल। sheep and Pet animals. they have found the bones of such animals. लिख रहा है डियर एंड पिग। अभी आपने सुना नहीं है क्योंकि आपने फर्स्ट लाइन को पढ़ के इमेजिन किया और रिएक्ट किया, ठीक है? तो जो गहराई में था
सबसे नीचे वाला जो था वहां पे जैसे जैसे उन्होंने खुदाई की, ऊपर के लेवल में क्या मिला उनको, कैटल्स के बोन्स मिले। नीचे जाते गए तो उनको वाइल्ड एनिमल्स के बोन्स मिले। ऊपर के लेवल में उन्होंने देखा कि प्रॉपरली कट है बोन्स, और नीचे के लेवल में टूटे हुए हैं, आइदर टूटे हुए हैं या फिर फुल स्केलेटन है। ओके, सो दिस शोज दैट, दिस प्रूव्स दैट व्हाट दैट अर्लियर दे वर डूइंग हंटिंग। हंटिंग के टाइम में वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू रोस्ट द एनिमल। वो एनिमल को रोस्ट ही कर देते थे पूरा पूरा बांध कर, ठीक है। और महेश ने बताया कि लाइक दे व्हेन दे हिट द एनिमल किसी शार्प स्टोन से, अपने टूल से, तो उससे उसको चोट लग जाती थी, उसको फ्रैक्चर हो जाता होगा, है ना। तो प्लास्टरिंग तो होती नहीं थी, तो इसलिए उसको मारने का सबसे अच्छा तरीका था उसकी हड्डियां तोड़ दी जाती थी, ठीक है। काटने का कोई कंसेप्ट तब नहीं था। मैम फीट पे वार करते थे मैम, लेग्स पे। हाँ, तो जहां पे भी जो वल्नरेबल पार्ट होते हैं ना, जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, जहां पे जल्दी से किसी को अफेक्ट होता है, लाइक आप वाइल्ड एनिमल्स को देखोगे ना, वो उनको एक नेचुरल, क्या बोला जाए, इंटेलिजेंस बोल सकते हो, ठीक है। वो जब भी अपना शिकार पकड़ते हैं तो उसके बैक साइड को हर्ट करते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ उसको, करते हैं। हाँ, या फिर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं। कभी भी देखना, गर्दन पकड़ के झूला झूल लेंगे, झूल जाते हैं, क्योंकि गर्दन पतली होती है और यहाँ पे उनका उनका एक, हाँ, नेचुरल सेंस होता है। वेदांश क्या बोल रहा आप? मैंने ये डिस्कवरी चैनल पे देखा था कि मैम एक लॉयन और डियर की फाइट में लॉयन हमेशा उसके गर्दन पे ही पकड़ता है मैम, क्योंकि वो लंबी होती है और मैम वो जल्दी से हर्ट हो जाता है वहां से। It's lion, not lion, it's lion, it's lion, it's lion, वेदांश, it's lion, मैम वाइल्ड it's not चैनल पे lion। आता है मैम, हाँ, जब आप देखोगे ना कि वो गर्दन को पकड़ता है, तो गर्दन को पकड़ने का उसका पर्पस क्या होता है, उसको पता है कि यहाँ पे जो नर्व है उसको अगर मैं पकड़ के डिस्ट्रॉय करूंगा तो इसकी सांस रुक जाएगी। कैन यू इमेजिन दिस थिंग? उसको पता है कि कहाँ तक मुझे हर्ट करना है कि इसकी सांस रुक जाए, दम घुट जाए, तो यहाँ पे वो लटक जाता है, उसको प्रेस करता है वो अपने दांतों से कि वो नर्व हर्ट हो जाए। हाँ, मैं फिर लायन में बहुत दिमाग है कि क्या करना है। क्या करता है मानव? मैं मतलब उन्हें तुरंत ही पता चल जाता है कि कब कैसे खरोचना है, मतलब किसको कब हाँ, ये जैसे हमें अपने आप आ जाता है ना, हमें भगवान ने बहुत सारी या नेचर ने बहुत सारे गिफ्ट दे रखे हैं, लाइक हम स्मेल कर लेते हैं, हम बोल सकते हैं, हम बता सकते हैं, मार सकते हैं, पीट सकते हैं। इन लोगों के पास इनके लिए इंस्टिंक्ट होते हैं कुछ चीजें, इनको गॉड गिफ्ट है, नेचर ने गिफ्ट किया हुआ है, क्योंकि इनको भी तो सरवाइव करना है ना। तो अगर ये उसके मोटे से पेट पे जंप करेंगे, बात पे जंप करके मारेंगे, उसको ज्यादा दर्द होगा इसलिए पकड़ लेता होगा। ज्यादा दर्द की बात ही नहीं बेटा, उसकी यहाँ दबाते से ये नस, यहाँ से सांस लेना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। मैम मैम एक बार हाँ दिव्या, मैम जैसे पता है, जैसे सार्ग किसी ने शिकार किया तो उसको पेट में मारना चाहिए, क्योंकि उसका पेट बहुत नाजुक रहता है। हाँ, वो मतलब इन लोगों को पता होता है, ये भी क्यों पता होता होगा, मेरे ख्याल से इनका भी ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होता है। मैम वेल और सार्ग, मैम वेल और डॉल्फिन, जब डॉल्फिन के दांत बहुत नुकीले होते हैं, जब भी वो पेट में डालते हैं ना, इसलिए पता सार्ग डॉल्फिन से दूर भगती है। तो इसलिए अगर हम देखेंगे तो जो अर्लियर लेवल मतलब सबसे नीचे का लेवल, वहां पे वाइल्ड एनिमल्स की बोन्स मिली, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ आए वहां पे कैटल्स की या फिर शीप की, गोट की, जिससे पता चला कि ये पालतू जानवरों को, जिनसे उनको दूध मिल सकता था, जिनसे उनको दूसरी चीजें मिल सकती थी, ऐसे जानवरों को पालते थे विच कुड बी यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ फूड। उनको फूड आसानी से मिल जाता था। हाँ, जब उनको कुछ अवेलेबल नहीं होता तो वो उन पे डिपेंड हो जाते थे, उनको मार के उनका मीट भी खा सकते थे। तो
धीरे धीरे उन्होंने हंटिंग इसलिए कम कर दी बिकॉज दे हैड एनिमल्स विद देम ओनली, दे वर रियरिंग द एनिमल्स। ठीक है, क्लियर? इज दिस क्लियर? जो लोग वेज होते थे वो लोग क्या खाते थे? वेज नॉन वेज वाले कंसेप्ट नहीं था बेटा, ऑल वर नॉन वेजिटेरियन बिकॉज दे हैड टू सर्वाइव and they were living in jungle, whichever the things which were available that time। ये तो धीरे धीरे जिसको, जैसे अब जरूरी नहीं है कि हर कोई जो नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहा है, दी पीपल इन दैट फैमिली सभी नॉन वेजिटेरियन होंगे, ऐसा नहीं होता है ना। और जहाँ पे वेजिटेरियन होते हैं, ये भी जरूरी नहीं हो सकता है कि किसी को, इसको क्रेविंग बोलते हैं, कि किसी को ये क्रेविंग हो कि यस आई नीड टू ईट दिस नॉन वेजिटेरियन फूड, लेट मी ट्राई, तो ट्राई भी करते हैं। तो ऐसा भी हो जाता है ना। कई बार फ्रेंड सर्कल के साथ में रहते रहते भी सीख जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम पे डिपेंड करती, सिचुएशन पे डिपेंड करती हैं। ओके, यस मैम, जैसे खाना नहीं मिलता मैम किसी को तो वो कुछ भी खा लेता है उस टाइम। हाँ, एक कहावत है। डियर ब्लैक कलर के भी होते हैं। हाँ मनस, मैम डियर हाँ ब्लैक कलर के भी होते हैं। यस बिल्कुल होते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में। मैम कंगारू का पता था कि वो रेड कलर के भी होते हैं, लेकिन डियर का नहीं पता था। रेड कलर प्रॉपर रेड नहीं होगा बेटा, ब्राउन जो होगा वो रेडिश ब्राउन होगा। ठीक है, जिसको ईट का रंग होता है। हाँ, ईट का कलर होता है ना, रस्ट कलर जो होता है वैसे से। एक्यूरेट रेड बोलोगे तो एक्यूरेट रेड आई डोंट थिंक सो, रेडिश होंगे, मतलब रस्ट कलर होगा, जो जंग लगने वाला कलर होता है ना, जंग का कलर है ना। Let us say coming to the next question, that is state whether true or false. Take your pencil in your hand. Okay, millets have been found at Hallur. Yes ma'am. Ma'am, true. True. Yes, write down true, write down T or put a tick over there. Put a tick. Yes, true. It is true. People in Burzaham lived in rectangular houses. False. वो अंडरग्राउंड हाउस में रहते थे। Yes, underground houses. That is, those houses were known as Pit houses. pit houses. Well done. Good. Tirand is a site in Kashmir. Is it so? false Yes. मैम वो बिहार में है। Yes. मैम वो बिहार में है। In Bihar, yes. Jadeite found in Daujali heading may have been brought from China. True. Yes. Okay. Next question. List 3 ways the lives of farmers and herders would have been different from that of hunter and gatherers. See, this question many a times I have observed that students used to write the lives of farmers and hunters separately. Farmers were hunters, herders. Okay, जो फार्मिंग करते थे वही पशुओं को भी पालते थे. That is why farmers and herders is a one term. It is a one term. And hunter and gatherer, those who were doing hunting, they were gathering food also. So hunter gatherer ma'am. is one another term. जब आप डिफरेंशिएट करोगे दोनों के बीच में, तो हंटर गैदरर्स एक साइड में होंगे, एक साथ आएंगे, और फार्मर एंड हर्डर दैट विल कम नेक्स्ट साइड. ओके, लेकिन वो एक ही टर्म है. हाँ, yes, make columns. Okay, divide your page and write down the differences. Now, very simple, farmers and hunters, what is the main difference between them? Ma'am, farmers herd animals and hunters hunt animals. Hunt animals. This is the main difference. What else? Ma'am, Yes, life nomadic or settled. Farmers used to And life of herders is settled. Life of farmers and herders were settled. Whereas we find that hunters and gatherers, Food supply herders not secure, hunter gatherers more secure. hunter gatherers, they were secured. Hunter gatherers were not secured. Farmers were more secured. Okay, why they were more secured?
Why they because were they got food easily. Ma'am, Yes, your voice is they were so low. living in safe zone, you can say. They could protect themselves from wild animals even. But those who are doing hunting, and all, they need to live in jungle for this purpose, and they were not secured. नॉट सिक्योर्ड होते हैं फिर वो Hunter gatherers कहाँ insecurity होंगे ना? They need to live in dens or caves, natural caves. They were not able to live in All the herders live in villages. मैम आपकी आवाज बहुत low आ रही है। गैदरर्स होते थे। हंटर, हाँ हंटर गैदरर्स एक साथ आएगा, फार्मर्स हर्डर्स एक साथ है, जो फार्मर्स थे वही हर्डर्स भी थे, ठीक है, और जो हंटर थे वही गैदरर्स थे। आई एम नॉट गेटिंग यू बेटा। राइट मी इन चैट बॉक्स। मैम तब भी तो लोग हंट रहते। हाँ कम करते, लेकिन बहुत कम करते थे बेटा। दे वर डूइंग हंटिंग बट वेरी लेस, वेरी लेस। अब ये सोच लो कि शिकार उनका क्या होता था या हंटिंग क्या होती थी, मजे के लिए होती थी। कभी मन नहीं हुआ, जैसे आपका मन नहीं होता ना तो बोलते आज बाहर से खाएंगे, चलो बाहर चलते हैं, है ना, किसी होटल में जाएंगे, आज पिकनिक मनाते हैं। सो यू नीड चेंज, यू वांट चेंज। सेम वे दे वर आल्सो वांटेड चेंज, क्योंकि एंटरटेनमेंट, बिकॉज दे वर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स, नो, दे टू वांटेड टू एंटरटेन देयर लाइव्स। तो उनके लिए एंटरटेनमेंट क्या था? शिकार। एंटरटेनमेंट क्या था? जंगल में घूम कर आए, है ना, किसी को दौड़ाएं, किसी एनिमल को दौड़ाएं, उसके पीछे दौड़े, देखें क्या होता है, कैसे रिएक्ट करता है। So these were their entertainment, sort of entertainment. Okay, because they were not having such type of life that we are living today. Okay, let's do last one. Last question is, make a list of all animals mentioned in the table, page 25. Same way like we have done about rice, no, कि राइस कहाँ कहाँ मिलेगा, ऐसे ही आपको एनिमल्स की लिस्ट बनानी है जो उसमें एनिमल्स है। सारे एनिमल्स को एक साथ लिस्ट आउट कर लेना। ओके, अब आपको ये सोच कर लिखना है कि दैट एनिमल, सपोज गोट, फॉर व्हाट पर्पस दे वर यूजिंग गोट, आपको लिखना पड़ेगा। Weaving clothes मैम कितने लिख रहे हैं? हाँ and for milk. मैम स्किन, हाँ, फॉर स्किन, फॉर मिल्क, फॉर फार्मिंग, Ma'am, ox. मैम आल्सो यूज मैम फार्मिंग हाँ, for farming, for moving here and there in carts. yes मैम हाँ, तो आपको ऐसे ही लिखना है, लाइक हाँ, एनिमल्स को वो किस लिए पालते थे ये आपको बताना है। आपको एनिमल का नाम लिखना है और उसके आगे उसका यूज क्या था वो लिखना है। फिर आपने सेकेंड एनिमल का नाम लिखा और उसका यूज बताना है कि व्हाई दे वर यूज्ड दैट टाइम। ओके, ऐसे करना है। टेबल बना के लिखना है। हाँ, टेबल बना के बेटा। ओके, इफ यू विश यू कैन मेक टेबल, इफ यू डोंट वांट टू मेक टेबल यू कैन राइट डायरेक्टली आल्सो। ओके, राइट डाउन द नेम ऑफ द एनिमल एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। टेबल में ज्यादा सबको एक साथ पहले लिस्ट आउट कर लेना, रिपीट नहीं करना है। डोंट रिपीट द नेम्स अगेन एंड अगेन। ओके, one by one, list of 6, 7, I think near about 10 animals are there. You can list out very easily. Okay, और उनका आपके हिसाब से क्या यूज करते होंगे, you have to write that. मैंने अभी वाली 7 निकाल ली जो सबने पॉइंट्स बोले। मैं एक और मैं बोलूं मैम, sheep, wool, meat, goats, milk, meat, skin, cattle, milk, dog, safety, grounding, buffalo, milk, ox used in agriculture, farming, pig, meat. Okay, good. तो ऐसे ही आपको सबको लिख लेना है, ठीक है। लिखना है बेटा दिव्या, लिखना है
मैम अजीब सी वॉइस आ रही। मैम उसका मतलब है कि वो कितने लिखने हैं पॉइंट से? नहीं, जितने आप लिख सकते हो बेटा, यू हैव टू राइट फॉर ऑल द एनिमल्स। ओके, ज्यादा एनिमल्स नहीं है, मेरे ख्याल से 6-7 है मानव। यस मैम 6-7 है। ओके, तो 6-7 एनिमल्स के बारे में 6-7 यूजेस होंगे, दैट्स इट। ओके, नाउ दिस इज योर चैप्टर कंप्लीट। नीचे जो है वो जनरल है कि व्हाट आर द सीरियल्स टुडे दैट यू आर ईटिंग। सीरियल्स मतलब अनाज। ओके, और नीचे दिया हुआ है कि डू यू ग्रो दी सीरियल्स यू हैव लिस्टेड इन आंसर। क्या आप उसको ग्रो करते हो? डू वी ग्रो? रेयरली। जो हम में से फार्मर होंगे वही ग्रो करते होंगे, वी डोंट ग्रो, वी जस्ट गो एंड बाय इट फ्रॉम मार्केट। ओके, तो फार्मर्स ग्रो करते हैं, वी आर दी कंज्यूमर्स। यस चेरी। मैम कॉपी में कौन कौन से लिखना है? 6 तक, टिल 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, ओके बेटा। यस मैम। Okay, let's do Yes, Shanti ma'am. Part. यस मैम। Yes, Pratishika, is there any doubt, beta? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। Okay, now complete this chapter. We'll be starting with new chapter, that is in the earliest cities. Okay, chalo. Let's do Shanti Part. Shanti, Shanti, Shanti. Sai Ram. Sai Ram, beta. सारा मैम, थैंक यू सायरा मैम, Thank you, ma'am. Bye, ma'am. सायरा मैम। Okay, Saira, bye, ma'am. beta. मैम कैन वी लीव? Saira ma'am. Yes, beta. Leave the class. Leave the class. यस मैम।